Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, in the last part of the story, we read about the narrator. In fact, the name of the story was The Address. The narrator is the daughter. In fact, here, she is the daughter and she is saying the whole thing. So, about the story, in fact. And the story, as you all have read it or understood it, that the setting of the story is the World War II, and whatever happens there in Germany, in fact, the narrator who belongs to a Jew family, and the Jews had to face persecution by the Nazi forces. So the narrator, in this, in fact, regard, you can say the narrator goes back to see, to find out the things, the belongings of her mother. And narrator's mother, she herself gave her the address, and with that address, she goes to the country back and she encounters a woman, and thereafter what happens we shall see in this part of this story. So have you agreed with her that she should keep everything? I asked. Narrator कहती है, अपनी माँ से कहती है, because the story is a dialogue between here. This part of the story is in dialogue, is in dialogue form between the narrator and her mother. तो कहानी यहाँ जो है एक संवाद के रूप में है narrator और उसकी माँ के बीच. So have you agreed with her that she should keep everything? I asked. मैंने उनसे पूछा कि आपने उनसे पूछा था, उनको राजी किया था with her that she should keep everything, कि जो भी सामान वो ले जा रही हैं, जो भी चीज़ें वो ले जा रही हैं, क्या उनको सहेज कर वो रखेंगी? As if that is necessary, my mother cried. उनकी माँ दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या यह जरूरी होता, यह अनिवार्य होता? अगर यह अनिवार्य भी होता, it would simply be an insult to talk like that, तो यह उनके लिए इंसल्ट होता, अपमानजनक होता कि ये चीज़ पूछना कि क्या उन सभी चीज़ों को वह सहेज कर रखेंगी या नहीं. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और ज़रा सोचो इस बात पर कि वो कितने बड़े रिस्क उठा रही थी, कितने बड़े जोखिम उठा रही थी. ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस और बैग. वो जब भी आती तो मेरे घर से जब बाहर जाती तो बहुत सारे सामान या तो बैग भरे होते या सूटकेस में भरकर सामानों को वह ले जाती. So here children, in this paragraph, the narrator is having a dialogue with her mother. जो narrator है, जो young girl है, वो अपनी माँ से dialogue कर रही है, वो अपनी माँ से बात कर रही है, और वो कह रही हैं कि have you ever talked to her whether she will keep all those things intact? क्या आपने कभी उनसे ये बात किया कि उन सभी चीज़ों को वो सहेज कर रखेंगी? तो उनकी माँ उन्हें समझाती हैं कि इट वुड बी क्वाइट इंसल्टिंग फॉर हर. तो यह अगर बात मानो कि सही भी होता, उसके बावजूद यह अपमानजनक बात होती कि मैं उनसे पूछता कि आप इन तमाम चीज़ों को, सभी चीज़ों को सहेज कर रखोगी या नहीं रखोगी. सो दिस इज हाउ द मदर ऑफ द नैरेटर इज मेकिंग हर डॉटर अंडरस्टैंड. माई मदर सीम टू नोटिस that I was not entirely convinced. और मेरी माँ पूरी तरह से convinced नहीं हुई, सहमत नहीं हुई. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. She looked at me reprovingly. Reprovingly का मतलब यहाँ critically होता है बच्चों. At me reprovingly, critically, and after that we spoke no more about it. वह इस बात को पसंद नहीं कर रही थी, और उसके बाद हम लोगों ने इन चीज़ों पर, इन विषयों पर बात भी नहीं की. So this is what the dialogue in fact advances at this stage of the story between the narrator and her mother. The narrator, being a young girl, she is very much curious about the lost things, which she thinks that when her mother herself gave all those things or allowed the woman to take away those things, so she is trying to know that whether her mother had asked the woman
to keep all those things safe or not. नरेटर इस बात में रुचि ले रही हैं, वह जानना चाह रही हैं कि क्या उनकी माँ ने उस औरत से ये सारी बातें पूछी कि वो जो सामान ले जा रही हैं उसे वो सहेज कर रखेंगी या नहीं रखेंगी. This thing is not liked by her mother and she disapproves it, and thereafter both of them don't talk further. So meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच meanwhile I had arrived at the station. सोचते सोचते वो स्टेशन आती without having paid much attention to things on the way. और जो भी सामान थी जिनको उन्होंने देखा था, नरेटर जिन चीज़ों को देखी थी उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते हुए वो आगे बढ़ती हैं, स्टेशन पर आती हैं. I was walking in familiar places again for the first time since the war. For the first time since the war. पहली दफ़ा वार के बाद वो उन सभी फेमिलियर जगहों पर दोबारा फिर से चलती हैं, देखती हैं, क्योंकि नरेटर भी पहले तो वहीं रहती थी. But I didn't want to go further than was necessary. लेकिन जो चीज़ें जहाँ तक अनिवार्य थी उसके आगे मैं जाना भी नहीं चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. एक बहुमूल्य, क्योंकि जो भी यादें थी वह बहुमूल्य समय का हिस्सा था. उस जमाने में जो कुछ भी नरेटर देखी थी, जो भी गलियां थी, जो भी सड़कें थी, जो भी घर थे, तो उन सब से यादें जुड़ी हुई थी. नरेटर नहीं चाहती हैं या नहीं चाहती थीं कि उन सभी जगहों को फिर से देखा जाए और खुद को हर्ट किया जाए, खुद को फिर से ठेस पहुंचाया जाए, खुद को फिर से दुखी किया जाए. So this is here children what we find that the story goes into the flashback. कहानी पीछे जाती है. वो वहाँ जो डार्लिंग 46 हाउस नंबर है, वहाँ से जब नरेटर वापस आ रही हैं स्टेशन की तरफ तो रास्ते में बहुत सारी बातें सोचती हैं. उन सारी बातों को फिर से याद करती हैं. उनकी माँ ने उनसे क्या क्या कही थी, क्या क्या बोली थी. जो भी जिन सड़कों से वो आ रही हैं वो सारे फेमिलियर हैं, क्योंकि बचपन उनका वहीं बीता था, तो पुरानी यादें तरोताज़ा हो रही हैं. लेकिन यादों के साथ, इन मेमोरीज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि these memories of the past sometimes hurt you also, sometimes make you sad also. ये अतीत की यादें कभी कभार दुख भी पहुंचाती हैं. Therefore, the narrator doesn't want to go further. She wants to visit, she wants to go only those places which is essential for her, which is necessary for her. So she doesn't want to go beyond that. तो जो अनिवार्य जगहें हैं वहीं तक वो जाना चाहती हैं, उसके आगे वो जाना नहीं चाहती हैं. So this is what the author has mentioned in this part of the story. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. वो जब ट्रेन में बैठती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग को भी अपने आगे बैठी हुई पाती हैं. As I had the first time I met her. और मानो ऐसा कि मैं पहली दफ़ा उनसे मिल रही हूँ. It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning after the day my mother had told me about her. सुबह का वक्त था, उनकी माँ उसे सब कुछ बता ही दी थी. I had got up late. वह लेट जगी थी. And coming down stairs, और सीढ़ियों से नीचे आ रही हैं. I saw my mother about to see someone out. मैंने देखा मेरी माँ को, जो नरेटर की माँ हैं, वो किसी को बाहर सी ऑफ करने जा रही हैं या बाहर भेज रही हैं, घर से बाहर. A woman with a broad back. और जो औरत थी उनके बैक ब्रॉड थे, चौड़ी कमर की औरत थी. So this is what now here the narrator reminiscences. She remembers, वो याद करती हैं कि किस तरह से एक बार नरेटर अपने घर पर हैं, वह देर से उठी हैं, सीढ़ी से नीचे आ रही हैं और उनकी माँ किसी को बाहर भेज रही हैं. तो बाहर जो औरत जा रही थी जिनके ब्रॉड बैक थे और वह कोई और नहीं, वही हैं जिससे नरेटर अभी मिलकर आई हैं. So this is what the story tells us in this part. There is my daughter.
said my mother, और वहाँ उनकी माँ कहती हैं, नेटर यह भी याद करती हैं कि देयर इज माई डॉटर, कि वह मेरी बेटी है। सी beckoned टू मी, beckoned का मतलब सिग्नल्ड होता है, सी सिग्नल टू मी, वो इशारा करती हैं कि ये मेरी बेटी है। द वुमन nodded and picked up the suitcase, वो औरत अपना सर हिलाती है, हामी भरती हैं और सूटकेस को उठाती हैं। अंडर द कोट रैक सी wore a brown coat and a strapless hat, वो जो जिस ढंग की कोट पहनी हुई थी उसका रंग भूरा था और एक सेपलेस हैट था, यूं कहें कि पुराने होंगे, जिसका कोई सही आकार नहीं था, उस तरह की वो हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, मैं जब नेटर कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि वह औरत एक बहुत हैवी सूटकेस लिए जा रही हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि वह बहुत दूर तो नहीं रहती हैं। इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ का जवाब होता है, वो कहती हैं मार्कनी स्ट्रीट रहती हैं, नंबर 46, रिमेंबर दैट, इसे याद रखो। जिस गली में रहती हैं उसका नाम मार्कनी है और हाउस का नंबर 46 है। सो अगेन द स्टोरी गोज इनटू द फ्लैशबैक, कहानी फिर से पीछे जाती है और नरेटर हर चीज़ों को याद करती हैं। वो कहती हैं कि एक बार जब वो देर से जगी थी तो, और जब सीढ़ी से नीचे आ रही थी तो देखी एक औरत को जो उनके माँ के साथ थी, वो बाहर जा रही हैं। और उसके बाद जब वो कहती हैं कि जब वो एक बहुत बड़ा सूटकेस या कोई हैवी सामान लेकर जब जा रही हैं, तो नेटर अपनी माँ से पूछती हैं कि क्या वह बहुत दूर रहती हैं? तो नेटर की माँ कहती हैं कि इन मार्कनी स्ट्रीट 46। तो नेटर की माँ जवाब देती हैं कि जिस स्ट्रीट में रहती हैं वो, द नेम ऑफ द स्ट्रीट इज मार्कनी एंड द हाउस नंबर is 46. So this is what this part of the story contains. I had remembered it, और जैसा कि उनकी माँ ने बोला था कि आप इसे याद कर लें, तो I had remembered it, मैंने इसे याद किया, but I had waited a long time to go there, लेकिन मैंने काफ़ी इंतजार किया उस जगह पर पहुंचने के लिए। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. नेटर कहती हैं कि आज़ादी के बाद जब युद्ध खत्म हो गए होंगे, सब देश अलग अलग हो गए होंगे, तो लिबरेशन के बाद वो कहती हैं कि मेरे भी मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं थी कि मैं फिर से जाऊं, उन सारी चीज़ों को देखूं, और मैं थोड़ी सी घबराती भी थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मैं afraid इस बात से थी कि वो सारी चीज़ जो अब मेरे काम के नहीं, मेरे पास नहीं, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वो फिर से मेरी यादगारी में आएंगे और मुझे झकझोरेंगी। तो द narrator what she is telling that she doesn't want to confront or she doesn't want to know, revoke all those past memories that no longer existed. वो जो अब नहीं है तो उसको उसमें जाने से, उसको याद करने से क्या फ़ायदा है? Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वो जो कवर्ड में, बॉक्सेस में जो रखी सामानें हैं, उनको देखने से जो पुरानी यादें फिर से ताज़े होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Which has endured all those years because they were things, and the narrator says that she suffered too much now because of all these things which are not the part of her life but of course the part of her memory. तो narrator ये कहना चाह रही हैं कि ये सारी चीज़ें उनको हर्ट करती हैं। She becomes emotional, she becomes sad because all those things, now the narrator has moved further. वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। She doesn't want to go back in the memory lane when her mother was there, everything was normal and she was living a very happy and rich life of course. और जैसा कि नेटर कहती हैं और या जिस तरह से हम पाते हैं बच्चों कि जिस ढंग के उनके सामान थे, उनके घर थे, तो उस टाइम वो बहुत अमीर रही होंगी
एंड सो शी बिलोंग टू अ रिच ज्यू फैमिली। लेकिन अब बातें सब कुछ बदल चुकी हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, वो दूसरी जगह रह रही हैं। एंड नाउ इन फैक्ट शी इज़ नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ लेविश लाइफ स्टाइल, और उस तरह की अमीर ज़िंदगी अब उनके पास नहीं है। शी इज़ लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, वह किराए के घर में रह रही हैं। बट ऑल दोज पास्ट मेमोरीज इट हॉन्ट्स हर, तो ये जो जितनी भी पुरानी यादें हैं उनको हॉन्ट करती हैं, उनको सताती हैं, उनको दुख देती हैं। देयरफॉर शी डजंट वांट टू गेट कनेक्टेड all those things. So here what we find children, that there is a connection, no, or there is a kind of confrontation between narrator's present thinking, her present way of life and the past of her life. और जो अतीत में जो भी बातें होती है उनमें और अभी में एक ढंग का हम confrontation पाते हैं, एक ढंग का टकरार पाते हैं। and therefore the narrator is afraid, इसलिए वो घबराती हैं, वो भयभीत हैं, and she doesn't want to revisit again, और वह उसको फिर से तरोताज़ा नहीं करना चाहती। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। धीरे धीरे जब सब कुछ नॉर्मल होता है, नहीं तो ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड के जो रंग थे वो हल्के थे। There was a bed you could sleep in unthreatened, बगैर डर के, बगैर किसी घबराहट के आप एक बेड है जिस पर सो सकते हैं। A room with a view, you were more used to glancing at each other. And one day I noticed, I was curious about all the possessions that must still be at that address. लेकिन एक दिन नैटर ये कहती हैं कि वो बहुत जिज्ञासु हो जाती हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जो उस एड्रेस पर थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन फैक्ट। चिल्ड्रन, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ दैट थिंग्स माइट नो वन डे इट पासेस, matters also, they also pass. People also die. But as long as you are alive, the memory of the past, it doesn't go or it doesn't fade so easily. वह इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यादें जो हैं वो हर चीज़ों को, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसे तरोताज़ा कर जाती हैं। एंड द थिंग व्हिच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, आपके बस में नहीं, और जब उसकी यादें होती हैं सिर्फ, तो वह बहुत तकलीफ़ देती हैं, वो बहुत दुख देती हैं। सो व्हाट वी फाइंड हियर, द नरेटर टाइम एंड अगेन, दो शी नोज द फैक्ट, शी नोज द ट्रुथ दैट शी हैज मूव्ड अवे, थिंग्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटली चेंज्ड, सिचुएशन हैज somehow normalized post-war, but still she remembers the belongings of her mother. अभी भी वो याद करती हैं अपनी माँ की उन सारी चीज़ों को। And the memory is very much attached with all those things, and she wants to feel it, she wants to touch it, she remembers it. वो उसे छूना चाहती हैं, उसे महसूस करना चाहती हैं, उसे याद करना चाहती हैं। And therefore once more she decides to visit that place, और इसलिए वो फिर से उस जगह को एक बार देखना चाहती हैं, जाना चाहती हैं। So after my first visit in vain to Mrs. Darling's house, जो पहला विजिट था वो तो उससे कुछ मिला नहीं, वो व्यर्थ में ही गया था। जैसा कि नरेटर कह रही हैं, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। आप बच्चों इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब वो गई थी वहाँ मिलने के लिए, तो शी वॉज केप्ट स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स। वो सिर्फ सीढ़ी पर ही खड़ी थी, और मिसेस डॉर्लिंग दरवाजे को धीरे से थोड़ा सा खोलकर जो भी बातचीत हुई, तो उन्होंने उसको अंदर भी नहीं बुलाया था नरेटर को। सो आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, तो इसलिए नरेटर कहती हैं कि वो तो व्यर्थ में ही हुआ था। टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने निश्चय किया कि दूसरी बार अवश्य जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, और इस बार जब वो जाती हैं
तो एक लड़की जिसकी उम्र 15 साल की होती है, ओपन द डोर टू मी, वह दरवाज़ा खोलती है। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, तो मैंने पूछा उससे कि क्या तुम्हारी माँ घर है? नो शी सेड, वह कहती है नहीं है। माई मदर इज डूइंग एन एरेंड। एरेंड जो घर के काम होते हैं छोटे मोटे, तो वह कह रही थी कि मेरी माँ किसी काम से बाहर गई होंगी। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लूँगी। So this is what we find here, that as the narrator herself tells that the first visit was in vain. पहली दफ़ा, पहली मर्तबा जब नरेटर उनके घर जाती हैं, जो औरत हैं जो सामान ले गई थी, तो एट द टाइम इन फैक्ट एंड हर नेम वाज मिसेस डॉर्लिंग, तुम जब मिसेस डॉर्लिंग के घर जब पहली दफ़ा जाती हैं तो नरेटर कहती हैं कि वो व्यर्थ में ही बीता हुआ समय था, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग didn't ask her even to enter the house. मिसेस डॉर्लिंग उनको घर के अंदर भी नहीं बुलाती हैं। तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं और नरेटर से बात करती हैं, क्वेश्चनिंगली इन फैक्ट। सो देयरफॉर द नरेटर डिक्लेयर्स दैट माई फर्स्ट विजिट वॉज ऑलमोस्ट इन वैन। पहला जो विजिट था, पहली दफ़ा जब वो गई थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, तो वह व्यर्थ में ही बीता था। और जब दूसरी बार जाती हैं तो एट द टाइम अ गर्ल एज्ड 15, एक 15 साल की लड़की है, वो दरवाज़ा खोलती हैं और नरेटर को अंदर बुलाती हैं। और जब नरेटर पूछती हैं उनसे कि इज योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी माँ घर पे हैं, तो जो 15 साल की लड़की है वो बताती हैं कि शी हैज़ गॉन फॉर सम एरेंड, वह किसी काम से बाहर गई हुई हैं। तो नरेटर कहती हैं कि आई विल वेट फॉर हर, मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी। सो दिस इज व्हाट इन दिस पार्ट ऑफ पैराग्राफ। Let us see the next paragraph of the story. I followed the girl along the passage. नरेटर कह रही हैं कि पैसेज में जब लड़की जाती हैं तो वो उसको फॉलो कर रही हैं, मतलब अंदर जा रही हैं, घर के अंदर जा रही हैं। An old fashioned iron हनुक्का, हनुक्का जो है यहाँ इनफैक्ट ये लाइट फेस्टिवल है हेब्रू में। तो An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. तो हनुक्का जो कैंडल होल्डर था जिसमें बहुत सारे कैंडल्स जलाए जाते होंगे, तो वहाँ रखे हुए थे। तो हनुक्का इनफैक्ट इन हेब्रू it was the candle holder, and people used to celebrate it when there was light festival or when light festival was used to take place there. तो जब लाइट फेस्टिवल वहाँ हेब्रू में हुआ करता होगा तो इस हनुक्का का इस्तेमाल होता होगा। सो इट वाज एन ओल्ड फैशन्ड कैंडल होल्डर। तो यह एक पुराने तौर तरीके से बनाए हुए कैंडल होल्डर था। सो एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। और नेटर कह रही हैं कि हम लोगों ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह कम्बरसम था। This word, it's a good word, you can see it. Cumbersome. It means not easy to handle or difficult, जिसको आप कठिन कह सकते हैं। तो ये ओल्ड स्टाइल हनुक्का था और उसको नेटर ने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया था। Won't you sit down? क्या आप बैठेंगी नहीं? Asked the girl. वह लड़की पूछती हैं जिनकी उम्र 15 साल है और नेटर घर के अंदर है। She held open the door of the living room and I went inside past her. She held open the door of the living room. लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती और नरेटर उसके अंदर जाती। I stopped. मैं रुकी। Horrified. बहुत आश्चर्यचकित थी। I was in a room I knew and did not know. मैं एक कमरे में थी
जिसे मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। अब यहाँ हियर चिल्ड्रन यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू, मैं एक कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और जिसे मैं नहीं जानती थी। मैं जानती थी तब जब मैं उसमें रहती थी, मैं नहीं जानती हूँ अब मैं इसमें रहती नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स। मिडेस्ट का मतलब अमंग होता है या बीच में आप कहें तो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बीच मैं खुद को पाई या मैं खड़ी थी। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं दोबारा फिर से देखना चाहती थी, लेकिन मैं उस वातावरण में, उस अजीबो गरीब वातावरण में मैं बिल्कुल आतंकित थी, ऑप्रेस्ड थी, परेशान थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ें वहाँ बिखरी पड़ी थी वह ढंग से रखे हुए नहीं थे। तो जो चीज़ ढंग से नहीं रखे हुए थे उसको आप देखें तो ऑथर या नरेटर ये कह रही हैं कि बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, सो द वे द थिंग्स वर केप्ट इट वॉज टेस्टलेस, ठीक नहीं था, अच्छे नहीं थे। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। अगली फर्नीचर, जो भी फर्नीचर थे वहाँ और जो वहाँ से जो स्मेल आ रहे थे, जो गंध आ रहे थे, आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती, नरेटर कह रही हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से चारों तरफ देखने की कोशिश की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वह लड़की एक चेयर को मूव करती है, खिसकाती है। आई सैट डाउन, मैं वहाँ बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और उनके बने हुए टेबल क्लॉथ जो थे उसकी तरफ मैंने गौर से देखा। आई रब्ड इट, मैंने उस पर अपने हाथ रब की, घिसे उस पर। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां गर्म हो गई थी उस पर घिसते हुए। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो पैटर्न था, जो उस पर काम किए हुए थे, मैं उसके लाइन को फॉलो कर रहा था, समझ रहा था। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और वो ये ढूंढ रही थी कि कहीं किनारे में उस पर एक बर्न मार्क था, उस टेबल पर वो कहीं जला हुआ था, जिसको वो देखना चाह रही थी, जिसको कभी मरम्मत नहीं किया गया था। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट चिल्ड्रन, how one small thing gets stuck in the memory and how it gets connected and how it gets reflected। किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें यादों में बस जाती हैं, जम जाती हैं, बार बार आती हैं, याद दिलाती हैं पुरानी चीज़ों की, और किस तरह से एक कहानी सी बन जाती हैं। अब यहाँ अगर देखें तो जो नरेटर है, शी हैज एंटर्ड द हाउस, वो घर में आ चुकी हैं। एक 15 साल की लड़की हैं जो उनके साथ हैं, वो उनको कुर्सी देती हैं बैठने के लिए। नरेटर बमुश्किल बैठती हैं, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं जो वो चारों बगल देखती हैं, तो सारी चीज़ों को देखकर पुरानी यादें फ्रेश हो जाती हैं। उस हर चीज़ें मन मस्तिष्क में पुनः वापस आ जाता है। अब नरेटर जो है वह देखती हैं कि एक वुलन टेबल क्लॉथ है, उल के बने हुए टेबल क्लॉथ है, उस पर वो अपनी उंगलियां घिसती हैं और उसके पैटर्न को समझना चाह रही हैं। और उनको याद आता है कि किसी ज़माने में वहाँ एक बर्न मार्क था जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था, तो उस बर्न मार्क को, वह जले हुए जो हिस्से थे उसको वह ढूंढना चाह रही थी, उसको वह देखना चाह रही थी। सो दिस इज हाउ even the small things it connects and it gets reflected in the story and how it haunts the people who are connected with it। तो इस तरह से पुरानी यादें किस तरह से लोगों को परेशान करती हैं, इसका नमूना हम इस पाठ में देख सकते हैं। So we are in fact children
in the middle of the story. No? We started that when the narrator comes to visit, in fact, or whatever her mother had told her about her belongings, so she comes to get acquainted with all those things. No? So somehow she revisits the memory lane, how people react, the woman who was there, who was the custodian of her belongings. Even in the beginning, she refuses to recognize her. Next time again she plans to, she musters, you can say, the courage. दोबारा फिर से वो जाने की हिम्मत करती हैं, वहाँ जाती हैं, and she finds a young girl of 15 years, एक 15 साल की यंग गर्ल है जो उनको मिलती हैं, वो उनको अपने घर के अंदर बुलाती हैं और वो बैठती हैं, and thereafter she looks curiously all the things which were placed in a not good manner in the house. तो घर में जो भी बेतरतीब तरीके से रखे हुए सामान थे उस पर वो गौर करती हैं. So this is how war creates a very devastating situation. This is how war in fact plunges people into grief. And we shall see the rest part of the story next time. Till then, goodbye. Namaskar.